چلیے اپن اس میں ٹیلی اوپن کر لیتے ہیں. اپن الٹر F1 سے اس کمپنی سے باہر چلتے ہیں. سی پریس کر کے اپنی کمپنی یہاں پہ کریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ لوگ کوسچن بول دیے سولو کروا دیتے ہیں جو سول دیا تھا. بولیے بھیا. 5 لاکھ روپے نیٹ لا کر ویاپار پرارمب کیا. پہلے اپن یہاں پہ ایل سی سے کیپٹل اکاؤنٹ کا لیجا بنا لیتے ہیں. کیپٹل اکاؤنٹ انڈر میں آپ کا کیپٹل اکاؤنٹ میں ہی آئے گا. انٹر کر کے آپ سیو کر دیں گے. کہ اسٹپ کی سے بیچ چلتے ہیں. اسٹپ کی کا یوز آپ جب تک کرتے ہیں جب تک آپ گیٹ وے آف ٹیلی پہ نہیں پہنچ جاتے. ٹھیک اب یہاں سے آپ واؤچر انٹری کرنے کے لیے وی پریس کریں گے. انٹری آپ کریں گے F6 سے ریسیپ باؤچر میں 2 میں آ جائے گا. کیپٹل اب کیس بولے کتنا کیپٹل ہے اماؤنٹ بولے. اور بائی میں آ جائے گا چیس. انٹر کر کے آپ سیو کر دیں گے. نیکسٹ بولیے. نجت مال خریدا اور ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کتنا ہے. کیش ڈسکاؤنٹ ٹھیک ہے اپن نگد مال خرید رہے ہیں. اینٹری کریں گے F9 سے پرچیز واؤچر میں. یہاں سے ایس باؤچر اپن سلیکٹ کر لیں گے. 2 میں کیا آ جائے گا کیش. اپن کنٹرول پلس این کرتے ہیں تو یہاں پہ کیلکولیٹر ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اماؤنٹ کتنا تھا 60,000. 60,000 پہ پہلے اپن نکالیں گے 5% ریٹ ڈسکاؤنٹ ملٹی پلائی 5 ڈیوائڈ 100. اماؤنٹ آ جائے گا 3,000. آپ 60,000 میں سے مائنس کر دیں گے 3,000 تو اماؤنٹ آئے گا 57,000. اب 57,000 پہ آپ کو 3% کیش ڈسکاؤنٹ میں ملا ہے. اپن نکالیں گے 57,000 ملٹی پلائی 3 ڈیوائڈ بائی 100. اماؤنٹ آ جائے گا 1,710. آپ 57,000 میں سے یہ اماؤنٹ مائنس کر دیں گے. تو اماؤنٹ کتنا بچے گا آپ کے پاس 55,290. اب اپن کیش کے سامنے اماؤنٹ کتنا ڈالیں گے 55,290. اب بائی میں کیا آ جائے گا پرچیز. الٹر پلس سی سے اپن پرچیز کا لیجا بنا لیں گے. پرچیز اکاؤنٹ انڈر میں آپ کا پرچیز اکاؤنٹ میں آئے گا. ٹھیک ہے اب اس میں اپن اماؤنٹ کتنا ڈالیں گے 57,000. اور 2 میں کیا آ جائے گا ڈسکاؤنٹ. الٹر پلس سی سے ڈسکاؤنٹ کا لیجا بنا لیں گے. یہ آپ کا پرچیز والا ڈسکاؤنٹ ہے تو اس کے آگے اپن پی لکھ دیتے ہیں. انڈر میں جس میں آ جائے گا یہ آپ کا انڈائریکٹ انکم میں. اس میں اماؤنٹ کتنا آ جائے گا ہاں انٹر کر کے اپن سیو کر دیں گے. نیکسٹ بولیے. نگد مال خرید رہے ہیں اپن تو اینٹری کون سے واؤچر میں کریں گے پرچیز واؤچر میں. 2 میں کیا آ جائے گا کیش. کنٹرول لائن سے کیلکولیٹر ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اماؤنٹ بولیے. ڈسکاؤنٹ کتنے پرسینٹ ہے کیش ڈسکاؤنٹ ہے. اب اپن کو 45,000 پہ 4% کیش ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے. تو ملٹی پلائی کریں گے 4 ڈیوائڈ 100. اماؤنٹ آ جائے گا 1,800. اپن 45,000 میں سے مائنس کر دیں گے 1,800 تو اماؤنٹ آئے گا 43,200. اب اپن کتنا لکھیں گے کیش کے سامنے اور بائی میں آ جائے گا پرچیز. اس میں اماؤنٹ کتنا آئے گا اپنا 45,000. اور 2 میں آ جائے گا ڈسکاؤنٹ. اس میں اماؤنٹ آ جائے گا 1,800 روپے. انٹر کر کے آپ سیو کر دیں گے. نیکسٹ بولیے. اب اپن نجد مال بیچ رہے ہیں تو اینٹری اپن کریں گے F8 سے سیلس باؤچر میں. یہاں سے اپن ایس باؤچر سلیکٹ کر لیں گے. اب بائی میں کیا آئے گا کیش. کنٹرول این کرتے ہیں کیلکولیٹر ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اماؤنٹ کتنا ہے
75,000 से माल अपन बेच रहे हैं, जिसपे अपन ट्रेड डिस्काउंट है ना, 4% अपन ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 4/100, अमाउंट कितना आ जाएगा? 3,000। अपन 75,000 में से माइनस करेंगे 3,000, अमाउंट आ जाएगा 72,000। अब आपको 72,000 में अपन कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 2%। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 1440। 72,000 में से अपन माइनस कर देंगे 1440, तो अमाउंट आएगा 70,560। अपन को कैश कितना मिल रहा है? 70,560। टू में क्या आ जाएगा? सेल्स। अल्टर प्लस सी से सेल्स का लेजर बना लेंगे। सेल्स अकाउंट अंडर में आपका सेल्स अकाउंट में आएगा। इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? 72,000। और बाय में आएगा डिस्काउंट, अल्टर प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। ये डिस्काउंट आपका कौन सा है? सेल्स वाला। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? 1440। एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलिए। सोहन को माल बेच रहे हैं, एंट्री अपन सेल्स वाउचर में करेंगे। अब बाय में क्या आ जाएगा? उस पर्सन का नाम जिसको अपन उधार माल बेच रहे हैं। अल्टर प्लस सी से अपन सोहन के नाम का लेजर बना लेंगे। अपन बनाएंगे सोहन अकाउंट। अंडर में ये आपका आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स में। डे डाल देंगे, कितने दिन बाद अपन को पेमेंट मिल जाएगा। कितना अमाउंट है? 35,000 पे 3% रेट डिस्काउंट। तो अपन निकालेंगे 35,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 100, कितना आ जाएगा? 1,050। 35,000 में से आप माइनस कर देंगे 1,050, तो अमाउंट आएगा 33,950। इसमें अपन अमाउंट कितना डालेंगे? 33,950। न्यू रेफरेंस सेलेक्ट कर लेंगे। टू में आ जाएगा सेल्स, इसमें भी अमाउंट कितना आएगा? 33,950। एंटर करके सेव। और क्वेश्चन इतने ही थे। स्टेप से अपन बैक चलते हैं। अब अपन गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। बैलेंस शीट देखने के लिए अपन बी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे बैलेंस शीट आपकी आ जाएगी। बैलेंस शीट आ रही है 5,06,020। कितनी आ रही है आप लोग आपकी भैया? किसी में आपने मिस्टेक कर दी होगी। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों का? इतने में कोई डाउट है? अब डिस्काउंट वाली एंट्री कर लेंगे आप लोग। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। परचेस वाले डिस्काउंट या सेल्स डिस्काउंट, किसी में भी आपको कोई भी डाउट हो तो। क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बताइए, कर लेंगे आप लोग? क्लियर है, परचेस वाला भी और सेल्स वाला भी। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। ये तो हो गया अपना परचेस और सेल्स का डिस्काउंट। आपको आ गया दोनों अच्छे से? दो डिस्काउंट होते हैं अपने, ट्रेड डिस्काउंट, केस डिस्काउंट, दोनों से एंट्री करना आ गया आपको। ठीक है, तो अब हम आपको आगे बताते हैं। अब अपन पढ़ते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपके खर्चे। उससे पहले आप हमें ये बताइए, आपको अकाउंटिंग की जो अपने 3 रूल्स रहते हैं वो पता है आपको? नहीं पता? देखिए, फर्स्ट रूल आपका होता है व्यक्तिगत खाते का नियम, जिसके हिसाब से पाने वाले व्यक्ति को बाय करते हैं और देने वाले को टू करते हैं। देखिए, व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है? जो व्यक्ति पाने वाला है उसे बाय करेंगे और देने वाले को टू करेंगे। सेकंड होता है वस्तुगत खाते का नियम। वस्तुगत खाते के नियम के हिसाब से जो वस्तु व्यापार में आती है उसे बाय करते हैं और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे टू करते हैं। जो व्यापार में आएगी उसे बाय करेंगे, जो व्यापार से जाएगी उसे टू करेंगे। थर्ड होता है आपका नाम मात्र खाते का नियम। नाम मात्र खाते के नियम के हिसाब से जितने भी आपकी व्यय और हानि होती है, जैसे आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और लॉस होते हैं, व्यय और हानि होती है, उसे आप बाय करते हैं। और जितनी भी आपकी इनकम और प्रॉफिट होती है उसे आप टू करते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन आप लोग इसे याद रखना कि अगर आप लोग को ये रूल्स अच्छे से पता है, हमने पहले ही बताया था क्लास में, अगर आप लोग ये रूल्स अच्छे से पता है तो आप इसमें टैली में कोई भी एंट्री आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट होता है आपका व्यक्तिगत खाते का नियम। व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार पाने वाले व्यक्ति को बाय करते हैं और देने वाले व्यक्ति को टू करते हैं। तो बाय करते हैं और देने वाले व्यक्ति को टू करते हैं। सेकंड होता है आपका वस्तुगत खाते का नियम। वस्तुगत खाते के नियम के अनुसार जो वस्तु व्यापार में आती है उसे बाय करते हैं और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे टू करते हैं। वस्तुगत खाते के नियम के अनुसार जो वस्तु व्यापार में आती है उसे बाय करते हैं, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे टू करते हैं। थर्ड होता है आपका नाम मात्र खाते का नियम। नाम मात्र खाते का नियम। नाम मात्र खाते के नियम के अनुसार जितने भी आपकी व्यय और हानि होती है, एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं, जितने भी अपने व्यय और हानि होती है, मतलब जितने भी आपके एक्सपेंसेस है, व्यय खर्चे हैं, और जितने भी आपके लॉस होते हैं, हानि होती है, उन्हें आप बाय करते हैं। जितने भी व्यय और हानि होती है उन्हें बाय करते हैं। और जितनी भी आपकी आय और लाभ होता है, इनकम और प्रॉफिट, उन्हें अपन टू करते हैं। इनकम और प्रॉफिट को अपन टू करते हैं, उन्हें बाय करते हैं। और जितनी भी आय और लाभ होती है उन्हें टू करते हैं। प्रॉफिट और इनकम को टू करते हैं। क्लियर? और एक और आप लिख सकते हैं, एक होता है अपना संपत्ति और दायित्व का नियम। संपत्ति और दायित्व के नियम के अनुसार जितनी भी आपकी संपत्तियां होती हैं उन्हें अपन बाय करते हैं और जितने भी अपने दायित्व होते हैं उन्हें अपन टू करते हैं। सभी संपत्तियों को बाय करते हैं और दायित्वों को टू करते हैं। बाय करते हैं और दायित्वों को टू करते हैं। क्लियर है? इतने में कोई डाउट है आप लोगों को? अब अगर आपको ये चार रूल्स अच्छे से पता है, आप कोई सी भी एंट्री आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। ये रूल्स अगर आपको पता है तो आप कोई सी भी एंट्री आसानी से टैली में कर सकते हैं। क्लियर है? कर लेंगे आप लोग? इतने में कोई डाउट हो तो उसको पूछ लीजिए। आगे बढ़े। हम आपको बता रहे थे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्च, व्यय। ठीक। अब एक्सपेंसेस आपके होते हैं दो टाइप के, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको करने न करने से अपने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब ऐसे खर्चे जिनको करने न करने से अपने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो होते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे खर्च जिसको करने न करने से अपने बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जिनको करने न करने से बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है। अब अपन देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल वेजेस। वेजेस तो हिंदी में बोलते हैं मजदूरी। अब आप देखें, जैसे अपनी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री पे जो माल तैयार होता है वो कौन तैयार करते हैं? मजदूर। अगर आप मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं देंगे तो क्या मजदूर अपने यहाँ माल तैयार करेंगे? नहीं करेंगे। मजदूर अपना माल तैयार नहीं करेंगे तो अपना माल तैयार नहीं हो पाएगा, बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है, अपना माल तैयार नहीं हो पा रहा, तो वेजेस अपना क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
क्योंकि अगर अपन मजदूरों को मजदूरी नहीं देते तो वो अपना माल तैयार नहीं कर रहे, और माल तैयार अपना नहीं हो पा रहा, मतलब बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो क्या होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस होता है अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हिंदी में उसको बोलते हैं मजदूरी। फिर नेक्स्ट अपन लेते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड होता है आवक जाड़ी भाड़ा। आवक जाड़ी भाड़ा मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं अपन की फैक्ट्री में जो भी माल तैयार होता है उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता रहती है। जब तक कच्चा माल नहीं आता, जब तक अपना माल तैयार नहीं हो पाता। अब कच्चा माल आप किससे मंगाते हैं? ट्रक वगैरह से। जब वो माल आपके पास आता है तो आप उन्हें लोडिंग का चार्ज देते हैं। वो क्या होता है आपका कैरेज इनवर्ड, आवक गाड़ी भाड़ा। जो अपना कच्चा माल अपने फैक्ट्री तक लेके आ रहे हैं उन्हें अपन लोडिंग का चार्ज देते हैं, तो वो होता है आपका कैरेज इनवर्ड, आवक गाड़ी भाड़ा। अगर आप उन्हें चार्ज नहीं देंगे तो क्या वो कच्चा माल आपकी फैक्ट्री तक लाएंगे? नहीं लाएंगे। बिना कच्चा माल के आपका माल तैयार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वो क्या है आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड क्या होता है अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने क्या क्या होते हैं? एक हो गया वेजेस, एक हो गया कैरेज इनवर्ड, एक होता है आपका फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका कौन सा एक्सपेंसेस होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों होता है? क्योंकि फैक्ट्री में अपना माल जो तैयार होता है वो होता है मशीनों के द्वारा, और मशीनें किससे चलती हैं? लाइट से। अगर अपन फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करेंगे तो क्या अपनी मशीनें चल पाएंगी? और मशीनें नहीं चलेंगी तो क्या अपना माल तैयार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बिजनेस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? आप लोग समझ में आया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस, ऐसे खर्च जिसको करने न करने से अपने बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, वो होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड और फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऐसे और भी होते हैं। आप लोग क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर कर लेंगे आप लोग? अब आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, अपन आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लिखिए बिजनेस स्टार्टेड विथ केस 6 लाख। 6 लाख रुपए नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 6 लाख रुपए नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। लिख लिया? नेक्स्ट बोले। नेक्स्ट लिखिए नगद माल खरीदा। नगद माल खरीदा 65,000 का। नगद माल खरीदा 65,000 का। 8% केस डिस्काउंट। 8% केस डिस्काउंट। नेक्स्ट लिखिए मोहन से माल खरीदा। मोहन से माल खरीदा 57,000 का। 57,000 का। 4% ट्रेड डिस्काउंट। 4% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट लिखिए राम को नगद माल बेचा। राम को नगद माल बेचा 85,000 का। राम को नगद माल बेचा 85,000 का। 4% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। 4% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट लिखिए माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा। माल बेचा, भुगतान में चेक मिला, चेक को बैंक भेजा। अमाउंट डाल लीजिए 25,000।
क्लियर है इतना? हाँ, चल नहीं है आप लोग क्वेश्चन सॉल्व? ठीक है, आप लोग ट्राई करना, कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना।